A very good evening, everyone. The, I can see people sitting, standing everywhere. The hall looks crowded, and everyone is here to listen to our favorite Javed Akhtar Sahab. आज अक्सर उर्दू को या तो हम सिर्फ यादों के हवाले से देखते हैं, जैसे ये गुज़रे वक्त की तस्वीर हो या फिर सियासत के चश्मे से। लेकिन उर्दू की कहानी ना सिर्फ यादों की है, बल्कि फलने फूलने की है। ये ज़ुबान सफ़र की ज़ुबान है, लोगों के मिलने की है, शहरों के बसने की है, और ख्यालों से ख्याल मिलने की है। आज हमारे साथ गुफ्तगू में जावेद अख्तर साहब है। He needs no introduction. People sitting here in audience across generations know of him, have read his poetry, have heard his songs, and his contribution for Urdu language is immense. Thank you, sir. Well, I have been given a rather an interesting topic, that is Urdu in India and India in Urdu. So, fine. But we will speak, she'll ask some questions for, say, first 25 minutes. Then rest of the 25 minutes, we'll open it to the house, and there'll be some volunteers with cordless mics, and you can ask questions. You don't have to be loyal to this topic. When you are asked a question, you can ask anything under the sun. So there is no barrier. Don't ask me this or don't ask me. You can ask me anything. As we all know, Urdu is a living Indian language rooted in everyday culture, cinema, poetry, and of course, shared histories. I won't take much of the time because all of you here have come here to listen to Javed Sahab. Javed Sahab, first question for you. आपके बचपन की बात करते हैं, your childhood. You have grown in company of poets, in company of writers. Urdu was a part of your household. और जब लेकिन उर्दू as a language of communication, but as a personal language, language for everything. आप थोड़ा कब आपको लगा कि उर्दू सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, पर कि उर्दू सब कुछ है, उर्दू एक दुनिया है? अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए. Since you have asked me about my childhood, it means the discussion is starting from prehistoric times. So, all right, no problem. See, when we are born in any language, say whether you are born in a Marathi family where everybody speaks Marathi, or everybody speaks Gujarati or Tamil or Telugu or whatever, you don't think that this is a language. This is like breathing. When you are breathing, do you think that, oh, I'm breathing oxygen? No, you don't. So it comes to you so very naturally that you are not even aware that what you are speaking is a particular language. That is the relationship one has with the mother tongue. Now, instead of talking about my childhood, let's talk of the language. What is language? Language has a script, language has some vocabulary, language has some grammar. So, is script a language? Now, Punjabi is written in 3 different scripts, in Devanagari, in Gurmukhi, and then in Urdu script also. But it remains Punjabi. When you see a poster of a film, HOTA, KUCH, KUCH, HOTA, HAI, kuch hota hai, these are Roman letters. So is it English or Roman or Latin or Hindi? Now this script is actually not even English but Roman. If a script would have been the language, then English, French, German would have been one language, because all of them have borrowed their script from Latin. So it means script is not the language. So is it the vocabulary that decides what is the language? All right. So I say
ये hall is spacious. I have spoken 4 words. ये hall spacious है. And the important words are in English. Hall and spacious. But am I speaking English? Or I am using 2 English words in Hindi. ये hall spacious है. What makes it Hindi? ये and है. Hall or spacious could not make it English. So ultimately, it is the syntax, the grammar, that's the language. Vocabulary can come from anywhere. Words in everybody's, we are not even aware that how many words, how many language have contributed words in our day-to-day life. We are not aware. How many of us are aware that Camera is an Italian word? No. Or auto rickshaw is a very interesting combination of a Greek word auto and a rickshaw word Japanese, and they have been put together in India. It's a fact. Like Gora Chitta mein Chitta is Punjabi, Nanna Munna mein Nanno is Gujarati. Like Sanduk is a Turkish word, Banduk is a Turkish word. Like Nashta is a Persian word. Like kurta is an Arabic word, like pajama is a Persian word. But no longer, now they are a part of our language. Words हम कहीं से भी ले लेते हैं. Balti is a Portuguese word. So what? तो vocabulary भी नहीं decide करती language. It is only the grammar. Now let's come back to case of Urdu. What is Urdu's grammar? And what is Urdu's vocabulary actually? If we go to UP and find somebody who cannot read and write, and I promise you it won't be a very difficult search, that man says, मैं घर जा रहा हूँ, तुम पानी पियोगे, खाना खाओगे, कल कब मिलोगे? वो लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है. तो ये जो वो बोल रहा है क्या है, हिंदी है कि उर्दू है? ये दोनों है. यही हिंदी है और यही उर्दू है. दुनिया में सिर्फ हिंदी और उर्दू 2 लैंग्वेजेस हैं जिनकी ग्रामर एक, उनकी सिंटैक्स एक है, और उनके एक हेवी नंबर ऑफ वर्ड्स भी कॉमन है. उनके शायद 15-20% वर्ड्स अलग होंगे एक दूसरे से, और वो भी एट अ सर्टेन पीरियड इंटेंशनली किए गए. कभी ये भी नहीं था, इतना डिफरेंस भी नहीं था, ये किया गया फॉर पॉलिटिकल रीजंस. तो हुआ क्या कि जब ये 2 नेशन थ्योरी प्रीच की गई, और ये 2 नेशन थ्योरी दोनों तरफ से प्रीच की गई थी. फंडामेंटलिस्ट ऑन बोथ द साइड्स वर प्रीचिंग 2 नेशन थ्योरी कि ये 2 अलग नेशन हैं, मुस्लिम. You can have different versions of history. You can have different claim on lands, but you cannot divide language. Urdu was the living proof of the fact that 2 nation theory is not right. ये तो एक language है, ये कहाँ से अलग करोगे, कैसे करोगे? But they had to push it on one side. So it was pushed to and implemented and imposed on a part of India जहाँ उर्दू language नहीं थी. Sindh, Balochistan, except for Punjab. Punjab had Urdu and Punjab had a very secular Urdu. यहाँ जो पंजाबी बैठे होंगे, they will tell you कि उनका grandfather जो थे, वो सिर्फ उर्दू पढ़ते थे. तो पंजाब में it was a secular language. बाकी जगह की तो लैंग्वेज ही नहीं थी वो. इवन ईस्ट बंगाल जो के बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना और उसके बाद अब बांग्लादेश बना, इनकी भी लैंग्वेज नहीं थी. फैक्ट ये है कि दुनिया में बहुत सारे पार्टीशन हुए. ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बहुत जगह हुए, मुल्क बटे हैं. बट एवरी टाइम द माइनॉरिटी हैज फेल्ट reasonably or unreasonably, logically or illogically unsafe and ask for
division, except for Pakistan. Pakistan holds a record which will never be broken. Like जिम लेकर एक बॉलर था, उसने एक टेस्ट मैच में 11 विकेट लिए, 19 विकेट लिए थे, एक इनिंग में 9 और दूसरे में 10. ये ब्रेक नहीं हो सकता. उसी तरह से पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी ब्रेक नहीं हो सकता. इट इज़ वन कंट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री वेयर मेजॉरिटी आस्क्ड फॉर द पार्टीशन. 10 करोड़ बंगाली ने बोला 7 करोड़ पंजाबी सिंधी से कि हमको पाकिस्तान नहीं रहना, हमें अलग मुल्क चाहिए. And one of the main reasons was language. Because Pakistan was imposing Urdu. I love Urdu, it is my mother tongue, but I totally stand with that Bengali who resisted Urdu because he was not willing to learn Urdu at the cost of his mother tongue. Fair enough, right? And he said, हमको पाकिस्तान में नहीं रहना हो, तुम हमें उर्दू नहीं पढ़ा सकते. After that, if somebody thinks that this is the language of Muslims, तो जरा बड़ी गड़बड़ बात है. एक. Another thing, I am very proud of one thing about Urdu, that languages, when they start, you take Latin, you take English, you take Sanskrit, you take any language, Arabic. इनकी जो पोइट्री है वो रिलीजियस पोइट्री होती शुरू में, इन द प्रेज ऑफ ग्रीक, रोमन, इन द प्रेज ऑफ द डेटी, इन द प्रेज ऑफ गॉड और गॉडेसेस, एंड देन ग्रेजुअली अदर टॉपिक्स हैव एंटर्ड इन इट. Urdu from day one was a secular, if not atheistic, then at least agnostic language. जो उर्दू गज़ल है, इसमें विलन्स कौन है? जो सारी रिलीजियस फिगर्स है, वो चाहे मुल्ला है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो इमाम है, चाहे वो मुफ्ती है, चाहे वो वाइज मीन जो लेक्चर देता है, मोहतसिब, he is the caretaker of morality and so, ये सब विलन्स हैं उर्दू गज़ल में. इनको विलन की तरह ट्रीट किया गया है. जो जगह अच्छी है वो है मैखाना. Now मैखाना again, it is symbolic. मैखाना doesn't mean tavern. मैखाना means a place where people are free to think, people are free to talk. It's a place which is liberal. On the other side there is haram, which is the mosque. It's a conservative place. Who is the hero? Either the ashik or rind, sharab peene wala. They are the heroes. Who are the villains? Sheikh, Muhtasib, Zahid, Puritan. ये villains हैं. And it is right from the beginning. Right from the beginning. So I am very proud of Urdu's history. अच्छा, ये लैंग्वेज कहाँ की है? ये तो हो ही गया कि ग्रामर तो हिंदी और उर्दू की एक ही है, तो कहाँ की हो सकती है? मगर कुछ लोग जो समझते हैं कि शायद बाहर की है, तो उन्हें इतना तो बताना चाहिए ना कि अगर बाहर की है तो कहाँ बोली जाती है. ये इराक में बोलते हैं, ईरान में बोलते हैं, उज़्बेकिस्तान में बोलते हैं, कज़ाकिस्तान में बोलते हैं, सऊदी अरेबिया में बोलते हैं, जॉर्डन में बोलते हैं, सीरिया में कहाँ बोलते हैं? कौन सी मुस्लिम कंट्री में उर्दू बोली जाती है? नो है. दे स्पीक देयर ओन लैंग्वेजेस. लैंग्वेज कैन नेवर बिलोंग टू अ रिलीजन. द आइडिया इज स्टूपिड. आपने कभी पूछा क्रिश्चियन की लैंग्वेज क्या है? अच्छा, घर आ जाते हिंदुओं की लैंग्वेज क्या है? हिंदी. तमिलनाडु में जाके बताइए जरा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज तो हिंदी है. लैंग्वेजेस रीजन की होती है, रिलीजन की नहीं हो सकती. यस, वी हैव टेकन लॉट ऑफ इट फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, बट इट डजंट मैटर. हम सभी जो है अब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमने हमारे कल्चर पे बहुत से मुल्कों का, बहुत से डिफरेंट कल्चर्स का, बहुत सी सोसाइटीज़ का असर है, तो उसमें क्या हो गया? बट एट आवर टर्म्स एंड कंडीशन. मिसाल के तौर पे जो उर्दू में पर्शियन वर्ड आए हैं, वो जो खड़ी बोली की ग्रामर है, जो हिंदी की भी है उर्दू की भी है, उसके हिसाब से आए.
हवा इज अ पर्शियन वर्ड, मगर हवाएं पर्शियन वर्ड नहीं, हवाओं पर्शियन वर्ड नहीं। दुश्मन एंड दोस्त आर पर्शियन वर्ड्स, बट दुश्मनी और दोस्ती ये हमारा है। ये हमने उसको, जो हमारी ग्रामर है जिसके हिसाब से हम नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं या वर्ब बना सकते हैं, वो हमारा, हम अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं। या जैसे अमीर इज एन अरेबिक वर्ड, मगर अमीरों ये हमारा है, अमीरी ये भी हमारा है। अब अमीरी हमने एक वो एडजेक्टिव बनाया, क्वालिटी बनाई, वो उनके यहाँ नहीं है। अमीरों भी नहीं है उनके यहाँ, उनके यहाँ अमीर का प्लूरल है उमरा, हम तो नहीं यूज़ करते, हम तो बोलते हैं अमीरों ने कहा, अमीरों ने ऐसा किया। तो हमने अगर वर्ड्स भी लिए हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके उन्हें अपना दिया। बहुत सारे वर्ड्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के हमारे पास, कहाँ कहाँ के वर्ड है, कोई हद ही नहीं है। ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस के वर्ड है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आप लोग उड़द की दाल खाते हैं, आपको मालूम है कि उड़द तमिल वर्ड है, कहाँ से आ जाता है, कभी अपने यहाँ से, कभी। अब जैसे अरेबिक में मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं, इल्मुल हिंसा, हिंदुस्तान की नॉलेज, हिंसा। नंबर्स को बोलते हैं हिंसा, फ्रॉम इंडिया, इसलिए कि हमने दिया है मैथमेटिक्स, ज़ीरो हमने बनाया, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हमने सिखाया दुनिया को, तो आज भी है उनके। दूसरे मुल्कों में हमारे बहुत सारे वर्ड है, हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों के बहुत से वर्ड है। अब आप वर्ड निकालना शुरू करें तो आप क्या क्या निकालेंगे? जावेद साहब शुक्रिया। ये सवाल, मेरे 2 और सवाल थे जिनके जवाब आपने ऑलरेडी दिए। पार्टीशन को लेके उसके बाद उर्दू ज़ुबान पे क्या असर पड़ा है, ये मेरा एक सवाल था और आपने बखूबी बहुत अभी देखिए यही हुआ कि इसी ज़मान ने पाकिस्तान के टुकड़े करवाए, इसी ज़मान ने ये हिंदुस्तान में गलतफहमी पैदा कर दी कि तो कहीं बाहर की है या ये मुसलमानों की है। ज़मान कभी किसी मज़हब की, किसी कम्युनिटी की हो ही नहीं सकती। कौन से मुसलमानों की है? बंगाल के 10 करोड़ मुसलमानों की ज़बान उर्दू थी। केरला में इतना बड़ा, जो सबसे बड़ा फिक्शन राइटर माना जाता है बशीर, वो उर्दू में लिखता था। बंगाली के जो बड़े पोएट हैं बांग्ला के, मैं इसका नाम उनका मेरे जहन से निकल रहा है, जिन्होंने लिखा, तो हाँ, काजी नजरुल इस्लाम, शाबाश, जीती रहो। मेरी एक टॉक जो है वो जबलपुर में भी है, तुम अगर आ सको तो आ जाओ भाई, ज़रा मुसीबत में काम आएगी। हाँ, आपने जो काजी नजरुल इस्लाम। अब तो ये अलग अलग जगहों के लोग हैं, वो अलग अलग उनकी जो अपनी ज़बान है उसमें लिखते हैं। ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि कोई आप कहें इस रिलीजन की ये लैंग्वेज है, ये हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं। आपसे, क्योंकि जावेद साहब हमारे साथ है, ही इज़ अ फेमस सॉन्ग राइटर, पोएट, इनके गाने हम गुनगुनाते हैं, इनके लिखे हुए, और उर्दू ज़ुबान की बात हो रही है तो आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, डू यू थिंक, हाउ फार डू यू थिंक, लाइक इंडियन सिनेमा as a shelter for Urdu language, or has it simplified the Urdu language or further diluted it? Or do you think Bollywood preserved that institutions failed? जो वो नहीं कर पाए academies और institutions, कि आपको लगता है बॉलीवुड ने कहीं ना कहीं जिंदा रखी हमारी? देखिए किस्सा क्या है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मैं अगर बात कर रहा हूँ और आपकी समझ में आ रही है तो आप समझ रहे हैं मैं हिंदी बोल रहा हूँ। जैसे ही आपकी समझ में आना बंद हुई तो कहते तो उर्दू बोल रहा है। हालांकि अगर मैं चेस्ट हिंदी बोलूँगा ना तो आप वो भी नहीं समझेंगे, फैक्ट ये है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त घरक अंदरा उज्जित उषण पर प्रदान करो, तो आप क्या मुझे एक प्याली चाय दे देंगे? नहीं देंगे। तो कोई भी ज़बान को आप इतना डिफ़िकल्ट बना दें, ज़बान है काहे के लिए? कम्युनिकेशन के लिए। अगर वो अपना बेसिक पर्पज़ ही नहीं सर्व कर रही तो फिर किस काम की? आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें न्यूज़ आती है मगर ठंडा नहीं होता वो। तो भाई आपके यहाँ एक टेलीविज़न है, वो ठंडा रहता है मगर उसमें न्यूज़ नहीं आती,
तो आप जिस पर्पस के लिए चीज़ बनी है पहले वो तो सर्व करें, वो फिर बात की बातें होंगी। उसी तरह से लैंग्वेज का बेसिक पर्पस है कम्युनिकेशन। अगर वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर रही है तो गलत है। किसी ने पूछा था कि तुमने दूरदर्शन पे हिंदी में समाचार सुने, तो कल नहीं मैंने समाचार में हिंदी सुनी है। तो वो फ़ायदा नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट तुम लैंग्वेज यूज़ करोगे कहीं भी, चाहे वो आप उर्दू में करें या हिंदी में करें, वो मीनिंगलेस है। आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो कम्युनिकेट करे। अब फिल्म में जो लोग बनाते हैं और जो सॉन्ग राइटर हो या डायलॉग राइटर हो, उनको ये ख्याल है कि उन्हें कम्युनिकेट करना है। सरकारी लोगों को परवाह नहीं कि कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, हम अपनी सैलरी पहले को ले लेंगे। यहाँ तो आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो अगली पिक्चर नहीं मिलेगी आपको। तो आप देखिए कि ये हमारी जो हिंदी फिल्में रही हैं उसके बारे में, कभी हमको अमेरिका में, इंग्लैंड में पाकिस्तानी मिलते हैं तो कहते हैं सर एक बात तो माननी पड़ी, बड़े ग्रजिंगली कहते, आप लोग की उर्दू फिल्में बहुत अच्छी होती। ये इन फिल्मों को जिन्हें हम हिंदी फिल्म कहते हैं, उन्हें कहते हैं आपकी उर्दू फिल्में बहुत अच्छी। फैक्ट ये है कि जब तक लिखा ना जाए, वो जो हमारे डायलॉग फिल्मों के होते हैं या गाने होते हैं, आप कैसे तय करेंगे कि हिंदी है कि उर्दू है? और बड़ा मिक्स होता है। हमें ये मालूम है कि कहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना। मैं ज़रूरत लिखूंगा, आवश्यकता नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं हक नहीं लिखूंगा, अधिकार लिखूंगा। वाह, कि ये वर्ड कम्युनिकेट करेगा। तो जो अभी तो ज़रा लैंग्वेज की गड़बड़ हो गई है सभी जगह, वहाँ भी हुई है, लेकिन ट्रेडिशनली जो हमारी खासतौर से 60, 70, 80 आप देखेंगे जो लैंग्वेज हमारी थी, गानों की हो या फिल्म की हो, वो ऐसी बैलेंस होती थी कि जैसे आप कहिए एक वर्ड है खो गया है कहीं, वो है हिंदुस्तानी। एक ज़माने में एक लैंग्वेज थी जिसे हिंदुस्तानी कहा जाता था। वो हिंदुस्तानी 2 स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, देवनागरी में भी और उर्दू स्क्रिप्ट में भी। ये असली ज़बान हम लोग की जो हम बात करते हैं। मैंने तो कई वर्ड ऐसे हैं कभी ज़मीन पे सुने ही नहीं, सिर्फ 30,000 फीट पे सुने। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही होगी। आप में से किसी ने ग्राउंड फ्लोर पे या ज़मीन पे खड़े होके सी लेवल पे सुखद वर्ड सुना है? कोई बोलता ही नहीं है। ये सिर्फ प्लेन में होता है, सुखद होती है यात्रा आपकी। बाकी ट्रेन में उतर के कोई नहीं कहता तुम्हारी यात्रा सुखद रही। जावेद साहब, वी हैव लॉट्स ऑफ यंग पोएट्स हियर सिटिंग विद अस, और उनमें से कई लोगों ने, कई पोएट्स ने जो मित्र भी हैं, उन्होंने बताया कि आपसे एक सवाल पूछना है। और सवाल ये है कि स्क्रिप्ट जो उर्दू की है, लिखाई, कहीं ना कहीं डू यू थिंक कि उर्दू समझने के लिए उर्दू लिखना, खैर आपने स्क्रिप्ट की बात करी, कितना ज़रूरी है? यस नो, आई टेल यू, जितना आजकल उर्दू पोइट्री है, लिटरेचर है, सब अवेलेबल है देवनागरी। देवनागरी मेरी किताबें जो देवनागरी में छपी हैं और उर्दू में भी छपी हैं, देवनागरी में उर्दू से 10 गुना ज़्यादा बिकती हैं। तो इसलिए कि देवनागरी से लोग फेमिलियर हैं, तो मगर वो उर्दू पोइट्री पसंद करते हैं और उर्दू पोइट्री बेहद ख़रीदते हैं। सिर्फ मेरी नहीं, सारे मॉडर्न पोइट्स की पोइट्री लेते हैं। और जो अभी भी जो शायरी अब कर रहे हैं लड़के, यंग लड़के, उर्दू में पोइट्री कर रहे हैं। एंड बाय द वे, यू मे और मे नॉट बिलीव, ज़रा गूगल कर लीजिएगा, मैनी ऑफ दम आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर हिंदू बॉयज़ हु हैव लर्न उर्दू ऑन देयर ओन एंड दे आर डूइंग फाइन पोइट्री, बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं। तो उन्होंने चैलेंज किया है इस थॉट को कि किसी कम्युनिटी की ज़बान है, ये नहीं है। तो अब ये है कि उसमें कम्युनिकेशन की डिज़ायर है ना आज के लड़के को, वो भले हिंदी में लिखे कि उर्दू में लिखे, वो लैंग्वेज ऐसी लिखेगा जो आम आदमी समझ सके। और इट वर्क्स। बहुत अच्छे अच्छे शेर कहते हैं। तो ये जो पॉपुलर उर्दू, जो हमारी बोलचाल की ज़ुबान है, जो हमारी ज़ुबान में उर्दू के लफ्ज़ हम रोज़ की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं, हाँ। और जो क्लासिक उर्दू है, तो आप नहीं, वो देखिए, वो लैंग्वेज जो है क्लासिक क्या होते हैं, क्लासिक लैंग्वेजेस ज़िंदा नहीं होती, मरी हुई होती हैं, उनके बारे में हम क्लासिक कहते हैं। जो ज़िंदा ज़बान है, जो हम बोलते हैं, समझते हैं, यस, एस्थेटिक्स होनी चाहिए। मतलब आप सड़क पे से लैंग्वेज लेके कहें कि ये ज़िंदा ज़बान है, ऐसा नहीं है।
उसकी अपनी एस्थेटिक्स, उसकी अपनी डिसेंसी, उसकी खूबसूरती, उसका एक पोइटिक फ्लेवर लैंग्वेज का हर लैंग्वेज में होता है। लेकिन ये कि जैसे आप इंग्लिश लीजिए, इंग्लिश जो है वो जब अमेरिकनाइज हो जाती है तो कुछ दूसरी तरह की हो जाती है, प्रॉपर इंग्लिश कुछ और है। तो आप प्रॉपर लैंग्वेज बोलिए बट डोंट मेक इट इनडिसाइफरेबल, ये बात ठीक नहीं है और ये पॉसिबल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी कभी लोग जान के मुश्किल ज़बान बोलते हैं, मैंने देखे ऐसे ऑरेटर भी, कि उनका मुझे ऐसा लगता है ख्याल ये है कि अगर मेरी बात कोई समझ गया तो कोई नहीं मानेगा, तो बेहतर ये है कि मैं ऐसी लैंग्वेज में बोलूं कि लोग सोचे पता नहीं क्या बोल रहा है, उसी में मेरी इज्जत है, मुझे ऐसा लगता है। वरना कोई रीज़न नहीं है, आप डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों जान के बोल रहे हैं, क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? जो ना पोएट्स है आज की जनरेशन के, जो लिखते हैं, जो पोएम्स नरेट करते हैं, रिसाइट करते हैं, वो आपको एज अ मेंटोर देखते हैं एंड योर वर्क इज एग्जेम्पलरी एंड दे लुक अप टू यू। व्हाट्स योर सजेशन टू द यंग पोएट्स, यंग बडिंग पोएट्स? बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत डिफरेंट लिखते हैं एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम। मैं कुछ ऐसा कॉन्डेसेंडिंग नहीं होना चाहता हूँ, नहीं, और वो कोशिश करेंगे तो और अच्छे, वो अच्छे हैं, आई एम सॉरी, मगर वो अच्छे हैं। मैं आपको एक दो शेर सुनाता हूँ बहुत नौजवान शायरों के, यंग लड़कों के। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, वाह। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। क्या अच्छा शेर है। उर्दू इन इंडिया, इंडिया इन उर्दू, जो मल्टीलिंगुअल इंडिया है, उसमें आप उर्दू का फ्यूचर कैसे देखते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो उर्दू के बारे में लोग ज़रा कम जानते हैं। खैर अक्सर चीज़ों के बारे में कम जानते हैं तो इतना ज़्यादा गम भी नहीं करना चाहिए। उनको कुछ ऐसा वेग इम्प्रेशन सा है कि उर्दू शायरी का मतलब है महबूबा और शराब और बाग फूल, ऐसा नहीं। उर्दू की जो सीरियस और रियल पोइट्री है वो अनइमेजिनेबल है। मतलब ये है कि आप हिंदुस्तान के किसी डेटी पे, राधा कृष्ण पे तो कितनी पोइट्री है उर्दू में, कोई लिमिट ही नहीं है, शिव पार्वती पे, किसी पे भी, होली दिवाली, मैं लिख के देता हूँ कि होली पे जितनी अच्छी पोइट्री उर्दू में है दुनिया हिंदुस्तान की किसी ज़बान में नहीं हो। मैं लेके आऊँ, आपको कहिएगा तो सुनाऊँगा आपको। 150 साल से 1857 से लेकर पुल की आज़ादी और आज़ादी के बाद तक जो भी बड़े पॉलिटिकल पॉजिटिव मूवमेंट्स आए हैं उसके पास उर्दू पोइट्री क्या है। और जो 30s में ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट विच वॉज पैन इंडियन मूवमेंट, इट हैड ऑल द लैंग्वेजेज, उसमें उर्दू पोइट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, राइटर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट जो है 1936 में शुरू हुआ, लखनऊ में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेसाइडेड बाय मुंशी प्रेमचंद एंड ब्लेस्ड बाय Rabindranath Tagore. He had sent a message to it, where writers and poets of all the languages of India had taken an oath that we will use a pen against the colonial powers, against the feudal powers, for the empowerment of women, for the empowerment of the poor. ये उनका ओथ था और वो उनकी सारी पोइट्री, उनके नॉवल, उनके शॉर्ट स्टोरी इस हिसाब से लिखे गए। इसमें उर्दू पोएट्स और राइटर्स का एक मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर, जिन्होंने प्रोग्रेसिव आइडियाज़, सेकुलर आइडियाज़, नेशनलिस्ट आइडियाज़ पे पोइट्री लिखी और बहुत ही इफ़ेक्टिव पोइट्री लिखी। मतलब बीच में बंगाल का आप लोगों ने सुना होगा कि बंगाल में एक बहुत बड़ा काल पड़ा था, उस काल के ऊपर उर्दू के एक पोइट ने पोएम लिखी थी। बताइए कब है ये, अर्ली 40s की बात है या लेट 30s की बात है, मैं डेट भूल रहा हूँ। उस एक पोएम को सड़क पे गा के उस वक्त लोगों ने 1 लाख रुपया जमा किया था। उस वक्त का 1 लाख मतलब आज का शायद 25-30 करोड़ समझो। एक पोएम से गा के सड़कों पे गाते थे और लोग पैसा देते थे वो पोएम सुन के। तो
जो चाहे अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ पोइट्री हो उर्दू में, अगेंस्ट द डिवीज़न, जो ट्रेजिडी हुई, पार्टीशन हुआ, उसके ऊपर जो पोइट्री हो कि क्या हो गया, या उससे पहले जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुए हैं, क्विट इंडिया के, नॉन कोऑपरेशन के, हर जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उस पर क्या पोइट्री हुई उर्दू में, एक। और दूसरी तरफ जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर है, गुरु नानक हो या कृष्ण जी हो, राम, शिव, पार्वती, किसी पे इन्हें जाने दीजिए। फिर हिस्टोरिकल फिगर झांसी की रानी, तात्या तोपे, ये जो फ्रीडम फाइटर्स बड़े बड़े हिस्टोरिकल हुए हैं, इनके ऊपर क्या पोइट्री हुई। झांसी की रानी पे एक पोएम है, ये सामने जो किताबें रखी हैं इनमें सब मौजूद है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको पढ़ना, मैं इन किताब का नाम बताऊंगा। इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, आप अमेज़ोन के थ्रू मंगा सकते हैं। वो पोएम मैंने शायद 10 बार 20 बार पढ़ी होगी, झांसी की रानी पे जो पोएम है, एंड आई कैन नॉट रीड दैट पोएम विदाउट क्राइंग। मैं अल्टीमेटली फुट फुट के रो रहा होता हूँ जब मैं पढ़ रहा होता हूँ। इतनी फीलिंग और इतनी स्ट्रेंथ से लिखी गई है। इस पोइट्री के बारे में आप लोगों को बहुत कम पता है, बहुत से लोगों को बहुत कम पता है कि ये जो रुख है उर्दू का, जो नेशनलिस्ट है, जिसकी जड़ें गहरी ज़मीन के अंदर है, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति में, इसका पता ही नहीं किसी को। वो सिर्फ ये समझते हैं कि वो कुछ महबूबा और शराब और ये वही, ऐसा नहीं। ये तो ये लोगों ने, गाने वाले जो है ना, गज़ल गाने वाले, ये लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर गा गा के इन्होंने पॉपुलर कर दिया। जो रियल पोइट्री वो थोड़ी गाते हैं। आई डोंट से कि उर्दू डिमिनिश हो रहा है, लेकिन जावेद साहब, चाहे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पर्शियन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी में, जयपुर में, और कई साल पहले आई वेंट देयर टू टेक एडमिशन बिकॉज आई वाज वेरी इंक्लाइंड दैट आई वांटेड टू लर्न पर्शियन, and the day I went they said that department has been shut down. So many departments. आपके एडमिशन लेने की वजह से हुआ है कि जिस दिन मैंने एडमिशन लिया उनका बंद करो। Persian. So you know the number of students taking admission for Urdu, Persian, आपको एक there बात has been a decline. And when you, बताऊं। even for journalism, because I'm a journalist and नहीं, I've ये seen दुनिया की हर लैंग्वेज आप सीखिए, अच्छी बात है। वो फ्रेंच हो, वो पुर्तगीज़ हो, चाइनीज़ हो, मैंडरिन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पर्शियन हो, अच्छी बात है, सीखिए आप। कोई भी लैंग्वेज है, ग्रीक हो। लेकिन जहाँ तक पर्शियन और उर्दू का संबंध है, एक उर्दू के पोइट थे आरजू लखनवी। उनको किसी ने कहा, जी देखिए उर्दू क्या है, बिना पर्शियन वर्ड्स के उर्दू कुछ है? तो उनका, देखिए आप गलत बात कह रहे हैं। यस, वी यूज लॉट ऑफ पर्शियन वर्ड्स, एंड हिंदी में भी है लॉट ऑफ पर्शियन वर्ड्स, लॉट ऑफ पर्शियन वर्ड। मतलब आप एक एवरेज हिंदी डिक्शनरी में 5 से 6 हज़ार वर्ड ऐसे होंगे, आपको पता ही नहीं कहाँ से आए। अब हो गए, हमारे हो गए वो। मगर मैं ये नहीं मानता कि हम डिपेंडेंट है, उर्दू इज डिपेंडेंट ऑन पर्शियन और अरेबिक। एंड ही सेड आई विल राइट अ कंप्लीट बुक विदाउट यूजिंग अ सिंगल वर्ड जिसका रूट भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्शियन और अरेबिक से हो। एंड ही रोट अ कंप्लीट बुक, सुरीली बांसुरी ऑफ पोइट्री। उसमें एक वर्ड ऐसा नहीं है, इट्स प्योर उर्दू, एंड नो वर्ड विच कैन बी ट्रेस्ड इनटू पर्शियन और अरेबिक। काली घटा में कौंदा लपका, बन में जो कोयल कूक गई, जितनी गहरी सांस खिंची थी उतनी लंबी हुक गई। या वो उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, टूट के आए घटा झूम के बरसा पानी। अब इसमें कोई वर्ड, सब ये खड़ी बोली के शब्द हैं, सब के सब। वो तो पूरी किताब लिख डाली है, मैं तो आपको 2 शेर सुना रहा हूँ। कुछ नहीं, हम यूज़ करते हैं। हम लोग अंग्रेज़ी के कितने वर्ड अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। अभी मैंने कहा हम यूज़ करते हैं, मगर इसके मतलब थोड़ी है कि हम डिपेंडेंट हैं और हमारे पास कोई वर्ड नहीं है यूज़ के लिए, तो आप कर देते हैं। तरह तरह के वर्ड आ जाते हैं। हमें भी वर्ड बोल रहा हूँ मैं, शब्द भी कह सकता था, लफ्ज़ भी कह सकता था, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि हमारी ज़बान की, चाहे वो हिंदी हो उर्दू, डिपेंडेंस नहीं है किसी पे। हम बिना किसी और लैंग्वेज का वर्ड इस्तेमाल किए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे। मैं इतना एहतियात करने की ज़रूरत क्या है। अभी पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट को, सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट को शायद उसने बोला, होम मिनिस्ट्री ने, कि ये उर्दू के वर्ड आप निकाल दीजिए। अरे भाई क्यों निकाल रहे हो, जो हो गए अपने रखो।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की डिक्शनरी छपती है तो उसमें होता है कि इस साल हम 50 वर्ड बढ़ा रहे हैं। जो लेटेस्ट एडिशन है ना, उसमें वर्ड जुगाड़ भी आ गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी में, जुगाड़। हम इस बात में खुश होते हैं हमने 100 वर्ड निकाल दिए। दैट इज रॉन्ग। लैंग्वेजेस ऐसे जिंदा नहीं रहती हैं। So before कहाँ से क्या क्या निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? आपको पता है कि शाह पर्शियन का वर्ड है, निकाल देंगे। So before we open questions to our audience, will be to the floor. उससे पहले सर एक लास्ट सवाल है। जी, इंस्टीट्यूशंस, इंडियन स्टेट, एकेडमीज, इनका क्या रोल होना चाहिए अपनी इस ज़ुबान को और पुख्ता और मजबूत, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? हम सबकी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोगों ने लैंग्वेज को अभी छोड़िए। आपके उर्दू का क्या हाल है, हमारी सारी इंडिजिनस लैंग्वेजेस का क्या हाल है, हमारी हिंदी का क्या हाल है, जो हमारी सरकारी ज़बान है। आपको एक बात बताऊं, इट इज़ फ्राइटनिंग, इट इज़ रियली फ्राइटनिंग, नो जोक्स इंटेंडेड। आज अगर आप किसी नौजवान से मिलते हैं, लड़के या लड़की से, जो परफेक्ट हिंदी बोल रहा हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक बात पैदा होती है कि किसी गरीब घराने का है। ये सच है, ये कोई हम्बल बैकग्राउंड से आया है। आपका अपनी लैंग्वेज के बारे में ये ओपिनियन हो गई है। अगर वो गलत हिंदी बोलता है तो एक बैकग्राउंड इसका अच्छा होगा। ये तो हमें रिस्पेक्ट अपनी भाषा से है। ये बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी रूट्स पे इतने शर्मिंदा हों। ये शर्म की बात है। कौन सी लैंग्वेज की हम परवाह कर रहे हैं? हमारी तो भाषाएं जो हैं सिमट रही हैं, सारी की सारी। वो एक दिन थे जब आप उर्दू का गम करते थे, अब तो आप हर हिंदुस्तानी ज़बान का गम कीजिए। एक चीज़ होती थी, प्रोवर्ब होते थे, कहावतें होती थी। आज कोई आपने 30 साल 32 साल का आदमी, औरत कोई देखा है जो कभी कहावत बोल दे? खत्म हो गए। ये कहावतें क्या थी? दी वो द कैप्सूल्स ऑफ विजडम विच वर मेड बाय जनरेशंस एंड जनरेशन। वो आपकी ज़बान से चले गए। हमारी वोकेबलरी सिमट गई है। हम बिना अंग्रेज़ी के 15 वर्ड इस्तेमाल किए हम बात नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई अच्छी बात है? और अगर कोई बिल्कुल सही भाषा बोल रहा है तो आपकी राय उसके बारे में ये हो जाती है, वर्णिक है। शुक्रिया। होना तो बहुत बुरी बात है ना। Before we open the floor for question and answers, and we'll be taking as many as questions we can, जावेद साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी कुछ नज़में, लोग बोलेंगे तो बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे ना कि सवाल क्या। नज़में आपकी सब सुनना चाहते। हेलो ऑर्गेनाइजर्स, आपस में बातें बंद करके एक बात बताइए कि ये जो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 2 माइक यहाँ रखवा दीजिए। 2 mics in the audience. कहाँ Can we have the questions, please? Raise your hands. 2 माइक। Okay. ये तो भाई आप दीजिए किसी को जो पूछना। Javed Sahab will choose. You just raise your hands if you have any questions. चलिए भाई दे दीजिए, इधर दे दीजिए। गुड इवनिंग सर। आपने रैशनैलिटी और एथिज्म पे तो बहुत बार बात की है, एंड यू आर अ बिग पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई एम एन एथिस्ट, बट व्हाट आर योर व्यूज ऑन एग्नोस्टिसिज्म, अज्ञातवाद जिसे हम कहते हैं, एग्नोस्टिक एथिज्म, एंड इफ गॉड इज दिस सुपीरियर बीइंग हु हैज क्रिएटेड अ सिस्टम जो ऑप्रेस करता है, टॉर्मेंट करता है, अब्यूज करता है ह्यूमैनिटी को। हम अक्सर बात करते हैं डिजीजेस की, वॉर्स की, नेचुरल कैलामिटीज़ की। सो वी ऑफन ऑल्सो से दैट वी आर सुपीरियर टू अदर एनिमल्स. Then are we mirroring God in the way that we produce and torment other animals? मैं टू बी ऑनेस्ट पूरी तरह आपका सवाल समझा नहीं, इसलिए बहुत एको हो रही थी आवाज़ में। अगर थोड़ा सा आप दूर करके पूछे माइक को। सर एक तो मेरा सवाल ये है कि आप एग्नोस्टिसिज्म और एग्नोस्टिक एथिज्म पे आपके क्या विचार हैं, और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम बात करते हैं कि दुनिया में इतनी क्रूअल्टी है, इतनी बीमारियां हैं, आई वर्क इन हेल्थ केयर एंड आई हैव सीन यंग किड्स डाइंग ऑफ ल्यूकेमिया, नेचुरल कैलामिटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे इतना लोग मर रहे हैं, इतनी पीड़ा दुनिया में है। तो उसी तरह से जब हम बात करते हैं कि हम लोग अपने आप को बाकी जानवरों से, बाकी एनिमल से सुपीरियर समझते हैं, हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम उन्हें ऑप्रेस करते हैं, टॉर्मेंट करते हैं, तो क्या हम एक तरह से वो गॉड को ही वहाँ पे मिमिक करें? वी आर एक्टिंग गॉड्स फॉर अदर एनिमल्स। बैठ जाइए।
पहले तो भाई मेरी समझ में आता है कि एक आदमी थीस्ट है, वो बिलीव करता है दैट देयर इज अ सुप्रीम पावर, या एक आदमी एथीस्ट है जो ये बिलीव करता है कि नहीं ऐसी कोई सुप्रीम पावर नहीं है, ये जो है सेल्फ जनरेटिंग है, ये यूनिवर्स ये बस चल रही है हमेशा से, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये एग्नोस्टिक मेरी समझ में नहीं आता। एग्नोस्टिक ये है कि मे बी नॉट। मुझे एग्नोस्टिक ऐसा लगता है जैसे स्लाइटली प्रेग्नेंट हो। भाई स्लाइटली प्रेग्नेंट क्या होता है? या तो तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, खुल के बताओ। तो एक मिनट बेटा, अभी आप ही को देंगे, आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए, मैं अभी आप ही के पास, इधर दे देना। Yes, next question. तो ये जो है ये कुछ ये वेग बातें हैं। बाकी ये कि आदमी गॉड की तरह ट्रीट करता है एनिमल्स को, आदमी का अजीब ही रिश्ता है रिलीजियस आदमी का। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो एनिमल की आत्मा होती है नहीं होती, क्या एनिमल जन्नत में या जहन्नुम में हेल में जाता है या हेवन में जाता है या दोबारा जन्म लेता है, क्या होता क्या इस एनिमल का? एनिमल की आत्मा की किसी को परवाह नहीं है। जो मच्छर आपने कल ताली मार दिया था जब आप लॉन में बैठे थे, इस मच्छर का क्या होने वाला है मरने के बाद? नोबडी इज बॉदर्ड। वो कॉकरोच जो आज सुबह आपने बाथरूम में पैर से कुचल दिया, ये कॉकरोच क्या दोबारा जन्म लेगा? आपको कोई परवाह नहीं है। ये कॉकरोच क्या जन्नत चला जाएगा? अच्छा, ये कॉकरोच पहले क्या आदमी था, मगर इसने इतने पाप किए थे कि इसे कॉकरोच की योनि में पैदा कर दिया गया। अब ये बेचारा कॉकरोच एक अच्छा कॉकरोच कैसे बने कि वापस थोड़ा ऊपर जाए? ये सब सवाल हैं जिनके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए। ये हाँ सर, एक और ये सवाल। मैंने जरा इधर This is, वादा कर, देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत वादे तोड़े हैं, अब इस उम्र में मैं ये सब नहीं करना चाहता। Yes, Gargi, shoot the question. हेलो सर। हेलो, मेरा नाम गार्गी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं और मुझ जैसे नौजवान जिन्होंने हाल ही में होश संभाला है और ये चूज़ किया है कि वो एथीस्ट हैं, तो उनके लिए आप क्या सीख दे सकते हैं या क्या हम आपसे सीख ले सकते हैं? भाई कोई होश संभालेगा तो एथीस्ट ही हो जाएगा, उसमें हैरत की क्या बात? उसमें हैरत क्या है? तो उसे मेरी सीख की जरूरत नहीं। Next question. हेलो। अच्छा, इसके बाद माइक इस एरिया में दे देना, यहाँ ये लोग Then करीब हैं, here. और इनको अगर Then नहीं here. दिया गया माइक तो ये वायलेंट भी हो सकते हैं, और ये पास में है। हाँ Keep your questions crisp जी, जी। to the point. Yeah. हाँ बोलिए, हेलो, नमस्ते सर। थोड़ा सर सा माइक दूर कर लो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बॉलीवुड मूवीज़ के बारे में तो बहुत बता रखा है कि आपको कौन सी पसंद है कौन सी नहीं पसंद है, लेकिन कभी हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में आपने ऐसा बताया नहीं है कि लाइक व्हाट आर योर टॉप 3 हॉलीवुड मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम एंड व्हाई? हाँ मुझे मालूम है हॉलीवुड वाले इस मामले में बहुत परेशान हैं कि मैंने अभी तक खुल के कुछ कहा नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट। Here, one here and one here. Yeah. There. नमस्कार सर। कहाँ हैं आप? खड़े हो जाइए. Stand up. जी सर, मैं सुबह से ये क्वेश्चन लेके चल रही हूँ कि आई एम एन आर्टिस्ट एंड मेरा पूरा काम जयपुर के अराउंड रहता है, पर मेरे को बार बार बोला जाता है कि जयपुर से बाहर निकलो और कुछ करो। तो आपने इतना सारा काम किया है, इतनी सारी चीज़ें की है, तो कभी आपको बोला गया है कि इस काम से आगे बढ़ो, कुछ और करो, कुछ अलग करो? एंड क्या आपका रिएक्शन रहता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्क्ड दिस। मुझे तो 2-3 बार जिंदगी में यही कहा गया है, घर से बाहर निकलो। लेकिन बेटा डिपेंड करता है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर योर पॉसिबिलिटीज इन जयपुर। जयपुर इज नॉट अ स्मॉल सिटी, जयपुर इज अ क्रिएटिवली अ वेरी School kid. अलाइव सिटी। बिसाइड दैट Here, one here. तो लोग तो वैसे ही आपको मानते हैं जयपुर को। दूसरे है कि दिल्ली जो है जस्ट नेक्स्ट डोर, तो दिल्ली आप अगर आर यू पेंटर? This school kid here, school kid here. Yeah. आपका आप दिल्ली जाती रहा कीजिए, दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हैं, वहाँ पर कुछ सर्कल्स हैं पेंटर्स के, उन्हें आप गेट इन टच में। अभी तो कुछ मुश्किल नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर लैपटॉप।
तो लोगों से आप कांटेक्ट रखिए जो है, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो असिस्ट करते हैं, जो शॉर्टलिस्ट करते हैं पेंटिंग्स को फॉर डिफरेंट एग्जीबिशंस एंड सो ऑन. इट्स ऑल पॉसिबल. अभी वो दिन गए कि अगर आप किसी और शहर में हैं तो आप डिसकनेक्टेड हैं. यू कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम जयपुर. और जयपुर कौन सा गांव थोड़ी भाई, इट्स एन इम्पोर्टेंट सिटी. Yes, one school kid wants to ask you a question, sir. गुड इवनिंग सर. सो मेरा क्वेश्चन था, आप यू प्रॉब्ली गेट दिस क्वेश्चन आस्क्ड अ लॉट. Many children right now, like specifically the younger age, I'm talking grade 8th up to 8th, we are losing a connection with indigenous languages, Sanskrit, Urdu, any language. So क्या हो सकता है to bring back that culture of indigenousness and that feeling of pride in our own That's a culture? very, very valid question. And I'm Yeah. very proud of you that Here. मुझे ऐसा लगता है कि Here. देखो बेटा, एक बात तो लेट्स फेस द रियलिटी. आपको इंग्लिश तो आनी है. Without English and without some facility in English, you should be able to speak fluently, convey your thoughts, and listen to people and understand them. It is a must. It is not the language of England anymore. It's the language of the world. It's an international language. So you should know that. But not at the cost of the mother tongue. It becomes the responsibility of the parents. It becomes the responsibility of the family to teach the child their mother tongue at home. कितना टाइम वेस्ट करते हैं रिलीजन सिखाने में, उसके बजाय भाई लैंग्वेज सिखा दो बच्चे को. ये होना चाहिए. एंड आई नो सर्टन फैमिलीज विद अ चाइल्ड, इंडियन फैमिली, दे वर बोर्न इन अमेरिका और इन इंग्लैंड, और उन्होंने कहा तुम हमें लेटर लिखोगे हर वीक जब तुम हॉस्टल में हो, अपनी मदर टंग में लिखोगे. तुम जब यहाँ घर पे आओगे अपनी मदर टंग बोलोगे. एंड बिलीव यू मी, children who are brought up in England and they studied in English schools, they are totally fluent in their own language because of the effort of the parents. हम लोग जो हैं इस मामले में सिर्फ स्कूल्स को ब्लेम करते रहते हैं. इट्स नॉट फेयर. दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज लैंग्वेज अपने अंदर एक लैंग्वेज इज द व्हीकल दैट कैरीज ट्रेडिशन, कैरीज कल्चर. जो संस्कार हैं आपके ट्रेडिशनल, वो संस्कार बदलते हैं और बदलना चाहिए, मगर उनसे आप डिस्कनेक्ट हो जाए वो गलत. मैं एक मिसाल देता हूँ कि आपने बच्चों को देखा होगा कि एक पेबल लेते हैं, डोरी में बांधते हैं, फिर वो डोरी घुमाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे छोटी डोरी छोड़ते जाते हैं और वो सर्कल बड़ा होता जाता है. Okay. Last question. एक सेकेंड. दिस पेबल इज द रिवोल्ट. वो दूर जाना चाहता है. दिस स्ट्रिंग इज द ट्रेडिशन विच इज होल्डिंग इट एंड पुलिंग इट बैक. अगर इसमें तुम डोरी तोड़ दोगे तो पेबल भी गिर जाएगा. अगर पेबल निकाल दोगे तो डोरी इतनी दूर तक नहीं जा सकती. ये जो टेंशन है बिटवीन द रिवोल्ट एंड द ट्रेडिशन, यही आपको आगे ले जाता है. आप यू हैव टू बी लाइक अ ट्री. आई विल गिव इट 8 सेकेंड. हैव मर्सी मी. आपको बहुत जल्दी है तो आप चले, मैं आता हूँ. Look at the tree. The tree has deep roots. Then it goes up. The trunk takes it away from the roots. Then the branches spread out. That is how we should be. अगर roots कम होंगी ना तो ज़्यादा बढ़े तो पेड़ गिर जाएगा. ब्रांच, ये जो रूट्स है ये ट्री नहीं है. ये जो ट्रंक है ये भी ट्री नहीं है. ये सिर्फ ब्रांचेस, ये भी ट्री नहीं है. ये कुल मिला के ट्री बनता है. हम लोगों का क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम और सोशल सिस्टम ये हो गया. एट सम प्लेसेस वी आर मेकिंग रूट्स, एट सम प्लेसेस वी आर मेकिंग ट्रंक्स, एट सम प्लेसेस वी आर मेकिंग ब्रांचेस. कंप्लीट ट्री ही नहीं है. आवर चाइल्ड शुड बी अ कंप्लीट ट्री. Last question. Yeah. सर Yeah. इसी बात पे और इस नॉट ये छोटे बालक की क्वेश्चन के थोड़ा एडिशन
आपने जैसे कहा माँ बाप वो दौर है जो मदर टंग सिखा सकते हैं, मगर मैं उस जनरेशन से हूँ जहाँ अंग्रेज़ी को महत्वपूर्ण दिया जाता था, और मैं आईबी स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी थी जहाँ मदर टंग बिल्कुल मना था। तो मेरी ये हाल हो गई थी कि अंग्रेज़ मर गए, औलाद छोड़ गए। तो आज भी बहुत दिक्कत होती है। मेरा तो ऐसा ख्वाब है कि मैं अमिताभ बच्चन या आपके जैसे वार्तालाप करूं, मगर बहुत कठिन है और मजाक उड़ाया जाता है। तो आप संसद में ऐसे प्रचार कीजिए जैसे मराठी महाराष्ट्र में कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी है, उर्दू भी कंपलसरी है। जैसे आपने कहा रिलीजन इज़ नॉट, I mean, language is not as per religion, but is as per region. तो जैसे इस बालक ने पूछा कि हम कैसे अपने why are you so patronizing and condescending about this boy? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बड़ी होंगी उससे। आप you are talking like a grandmother. ये जो बच्चा है ना, अभी जो खड़ा हुआ था, चाइल्ड, कुछ ऐसा बच्चा है। I'm 43 years old. अच्छा, point taken. I don't think we disagree at all. You see, वो भी सही है कि आपको इंग्लिश आए आपको, और इंग्लिश आप सीखें अच्छी तरह से, और ये भी सही है कि आपको ये। तो एक काम करो यार, स्कूल और घर को बांट लो ना। स्कूल में वो सीख लो, घर में ये सीख लो, क्या प्रॉब्लम है? घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये ज़बान सिखा देना, क्या हर्ज है? अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हम अपने बच्चे को उसकी मदर टंग सिखाएंगे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। घर में उसे बोलो बेटा तुम अपने दोस्तों से इंग्लिश बोला करो, तुम मुझसे जो है अपने बच्चे से कहें कि आप मुझसे तुम हमारी जो मदर टंग है उसमें बात करो। घर में यही ज़बान बोलो, तुम अपने दोस्तों के साथ बोलो, तुम क्लब में जाओ, तुम स्कूल जाओ, तुम कॉलेज जाओ, स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू आर एट होम यू विल स्पीक योर मदर टंग। इतना करके देखो। Thank you so much, sir. We are running short of time, but आपकी नज़्म बहुत सारे। अभी नज़्म जाने दो, ये बातें ज़्यादा इंटरेस्ट। Okay, one last पढ़ लेंगे, मैं बता दूंगा कहाँ मिले। How many of you want Javed Saab to recite a तो poem? मुझे पता ही नहीं लगा। Poem, sir. Everybody wants you to recite a nazm. आप लोग इतना एक साथ बोलेंगे तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मुफ्ती जी के साथ आपकी एक डिबेट चर्चा में थी, उस पे आपकी क्या टिप्पणी है? हाँ, देखो ये डिबेट जो होती है ना, इसमें इस आशा के साथ तो आप डिबेट नहीं कर सकते कि ये आदमी एथिस्ट हो जाएगा या मैं जो हूँ रिलीजियस हो जाऊँगा। ये ऐसा नहीं होने वाला, और ऐसा कोई उम्मीद भी नहीं होती है। होता ये है कि जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो दे आर टू काइंड ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हिम, पीपल हु आर कमिटेड टू मी। जो मेरे साथ कमिटेड है वो सिर्फ वो बातें चुनेंगे जो उनको सूट करती हैं, जो उसके साथ कमिटेड है वो सिर्फ वो बातें चुनेंगे जो उन्हें सूट करती हैं। बट देर आर फेंसिटर्स, देर आर पीपल हु आर स्टिल ओपन, यंग पीपल पर्टिकुलरली। वो जब दोनों बातें सुनेंगे तो उनको कुछ ना कुछ बात उनके माइंड में रह जाएगी जो सही होगी। तो वही पर्पज़ होता है। इसमें कोई किसको हरा दे, कौन हरा देगा, कैसे हराएगा? तो सबके कन्विक्शंस इतने डीप हैं कि वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन जो सुन रहा है इंसान और जो फेंस सीटर है, जो कि एकदम उसने अपने माइंड पे ताला लगा के चाबी फेंक नहीं दी, आइदर वे, वेदर एज एन एथीस्ट और एज अ थीस्ट, तो वो जब सुनेगा तो कुछ सीखेगा और सोचेगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोचने पे मजबूर होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। भैया माइक नहीं होगा तो आई कांट हियर। चलो अभी किसका? स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य कि हाउ कम योर हेल्थ इज सो गुड? जो मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। आपका स्वास्थ्य कैसा? बहुत ही सिंपल है, इरेगुलर लाइफ, कभी भी सो जाइए, कभी भी उठिए, जो दिल में आए जिस समय आए खाइए। आइसक्रीम पे ज़्यादा जोर दीजिए, मिठाई पे ज़्यादा जोर दीजिए, एंड टच वुड सब ठीक हो जाएगा।
I know most of you want this session to be on and to be on and to be on, and so do I, and so does everybody. But we have a session lined up here, and Shukriya Javed Sahab. I could speak to you for next 2 hours. मगर जालिम ज़माना हमें इजाज़त नहीं दे रहा. Shukriya Javed Sahab for reminding us that Urdu belongs to us and we belong to Urdu. Thank you so much.